Good morning, students. Welcome again. Today we will discuss the childhood poem of the 11th class written by Marcus Nitton. First of all, I give you a brief introduction of the poem. In this poem, the poet laments over the loss of his childhood. It was a time when he sincerely believed that there is a heaven and a hell. It was a time when he believed that the adults really meant what they said. He believed that people really loved one another when they talked and preached of love. It was a time when he thought himself as one among others. He did not think he was in any way different. But now, all that innocence is gone. Now he thinks that heaven and hell are no real places. Now he sees people talking of love and preaching love, but he sees that they do not act lovingly. Now he is conscious of his own separately and feels himself different from others. The poet wonders when and where he lost his childhood. He can only say that it has gone to some forgotten place that is hidden in the face of an infant. Now we start line by line explanation of this poem. First, when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Ceased मतलब completed, stopped. Was it the time I realized the hell and heaven could not be found in geography? Geography means geography book. And therefore could not be was that day. First of all, we will discuss this stanza in the English, then after I will tell you in the Hindi. So, first the poet suddenly realizes that he has lost his childhood, but he does not know when and where he had lost it, means lost his childhood. He asked if he had lost it the day when he entered his 12th year, or it could be the time when he realized that heaven and hell were no real places. They couldn't be found anywhere in books on geography. They were just products of imagination. Therefore, they couldn't be found anywhere on the earth. The poet wonders what day it could be when he lost his childhood. So, जो कवि है यहाँ पे मार्कस नेटन, वो अचानक से उनको महसूस होता है क्या कि वह अपना बचपन खो चुके हैं, लेकिन उसे यह पता नहीं कि कब और कहाँ उनका बचपन जो था वो खो गया था। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या वह उस दिन खो गया था जब वह 12वें वर्ष में एंट्री करता है, क्या उस दिन उसका बचपन खो गया था, या फिर जब उसे महसूस हो गया था कि स्वर्ग और नर्क जो है कोई वास्तविक जगह नहीं थी। इन दोनों ही जगहों के बारे में, यानी कि चाहे हम हेवन की बात करें और चाहे तो हम हेल की बात करें, इन दोनों ही जगहों पे क्या नहीं होता, ये कभी भी कहीं भी किसी भी ज्योग्राफी की बुक में इन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मात्र कल्पनाएं हैं, इमेजिनेशन है, इसलिए उन्हें धरती पर किसी भी जगह ढूंढा नहीं जा सकता। और कवि जो हमारे मार्कस नेटन हैं, उनको समझ नहीं आता है कि वह कौन सा दिन था जिस दिन की उन्होंने अपने बचपन को खो दिया था। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो इसमें जो मार्कस नेटन है वो पूछता है कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया, क्या मैं 11 साल का था तब चला गया था, या जब मुझे ये पता लग गया था कि हेल और हेवन वास्तविकता में अर्थ पर ज्योग्राफी की बुक में कहीं नहीं है, या फिर क्या कि उन्हें कभी भी ढूंढा नहीं जा सकता।
तो क्या उसी दिन मेरा बचपन चला गया था जिस दिन मुझे ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई थी। क्योंकि एक जो छोटा बच्चा होता है, इनोसेंट जो बेबी होता है, वो सारी इमेजिनेशन करता है और कभी भी रियलिटी में यानी स्वर्ग और नर्क वास्तविकता में परियां जो है वो उसके लिए वास्तविकता में इस धरती पर एग्जिस्ट करती हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेंजा की बात करें तो फर्स्ट स्टेंजा में जो बात की गई है वो किसकी की गई है? रेशनलिज्म की बात की गई है, यानी कि तर्कवादी जो बातें हैं वो यहाँ पे की गई है, तर्कवादिता की बात की गई है। नेक्स्ट सेकंड स्टेंजा की तरफ हम देखते हैं। तो अगर इसमें से मैं क्वेश्चंस आपको दूं कि इस स्टेंजा में से कौन कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे, तो क्वेश्चन देखिएगा। सबसे पहले माय फर्स्ट क्वेश्चन इज when does he think he had ceased to be a child? When does he think he had ceased to be a child? Next question, how did he feel about heaven and hell in his childhood? Third question, what does he think about them now? Fourth question, why does he think like that? Next question, what idea does the poet want to convey in these lines? अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टेंजा को। सेकंड स्टेंजा में देखिए, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वापस से वही क्वेश्चन वो यहाँ पे रिपीट करता है। एक आपको फिगर ऑफ स्पीच, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, दिख ही रहा होगा सामने साफ तौर से। वैसे हम फिगर ऑफ स्पीच के अलग से हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस वाले जगह पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बना है। ये आप मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि कल भी हम लोगों ने यही किया था। तो आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो कौन सा बनता है, और कमेंट करके बताइएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट सेकेंड स्टेंजा, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, जो मार्कस नेटन है वो अपने क्वेश्चन को वापस से रिपीट करते हैं और वापस से वही क्वेश्चन दोहराते हुए कहते हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, was it the time I realized that adults were not all they seemed to be, and they talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? So, in this poem, in this stanza, the poet does not know when he lost his childhood. It could be the time when he realized that adults were not what they seemed to be. Adults talk of love, they preached of love. In his childhood, the poet used to think that adults were really loving and caring. But now he finds that in their actions they are not so loving. They seemed loving only in their talking and preaching, but in their actual actions they were much different. The poet says that it happens perhaps lost his childhood when he found this hypocrisy in the actions of grown up people. Means क्या? अब देखिए, फर्स्ट वाले स्टेंजा में हमने बात की थी, क्वेश्चन यहीं पे पोएट ने किया था, सेम यही क्वेश्चन, कौन सा, कि मेरा बचपन कब चला गया। अब वापस से यहीं से इसी क्वेश्चन से ही वो इस स्टेंजा को भी स्टार्ट करता है कि जो पोएट हैं हमारे, उनको पता नहीं है कि उनका बचपन कब चला गया। मतलब भाई वो कौन सा दिन था, वो कौन सा साल था जिसको वो कह सकता है कि उस दिन मेरा बचपन चला गया, मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, तो ऐसा कौन सा दिन था या ऐसा कौन सा साल था, ये पोएट यहाँ पे जानना चाहते हैं। यह वह समय हो सकता है। उसके बाद वो जो है तरह तरह के अपने इमेजिनेशन, जो तरह तरह के विचार उसके दिमाग में आते कि शायद वो दिन था जिस दिन की मैं समझ गया था थोड़ा, जो अर्थ के ऊपर हेवन और हेल नहीं होते हैं, शायद उस दिन मेरा बचपन चला गया था। सेम इसी तरह के एजम्पशंस, अनुमान वो यहाँ पे लगाते हैं मार्कस नेटन कि शायद
यह वो समय था जब उसे महसूस हो गया कि जो अडल्ट लोग हैं, अडल्ट कौन, जो वयस्क, अबव 18, यानी कि चाहे उसके पेरेंट्स हैं, चाहे उसके पड़ोसी रिलेटिव जो भी हैं, जो कि बड़े हैं, पूरी तरह से अवयस्क हैं, अडल्ट हैं, वो लोग वैसे ही नहीं होते हैं जैसे वो दिखाई देते हैं। जो अडल्ट हैं वो लोग एक दूसरे के साथ लगाव की, प्यार की बातें तो करते हैं, प्यार के बारे में, सभी लोगों के साथ में भाईचारे से, प्यार से रहना चाहिए, इस चीज़ के उपदेश तो देते हैं। प्रीच्ड, प्रीच्ड का मतलब होता है क्या, उपदेश देना, ठीक है, sermons हम इसको बोल सकते हैं। बट अगर वो क्या करते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, वो भाषण तो प्यार के बारे में देते हैं कि प्यार से, भाईचारे से सभी के साथ में रहना चाहिए, लेकिन अपने बचपन में कवि ऐसा समझा करता था कि जो अडल्ट लोग हैं वो सचमुच प्यार करने वाले होते हैं, दूसरों का ध्यान रखने वाले होते हैं, लेकिन अब जब वो ये देखता है कि उनका व्यवहार कुछ और है और वास्तविकता में वो जो है दूसरों से लगाव की भावना नहीं रखते हैं। कौन लोग, अडल्ट लोग। वे केवल अपनी बातों और अपने उपदेशों में ही प्यार करने वाले प्रतीत होते हैं, वास्तविकता में उनका व्यवहार बिल्कुल डिफरेंट होता है। कवि यहाँ पे कहते हैं कि उसने अपना बचपन शायद तब खो दिया था जब उसे वयस्क लोगों के इस आडंबर का पता चल गया था। कौन से विचार की यहाँ पे बात की गई, तो यहाँ पे बात की जा रही है कौन से विचारों की, कि कैसे वो लोग दिखावा करते हैं कुछ और होते हैं कुछ और। इसी तरह से वो लोग एक दूसरे के साथ जो है वो भाईचारे की भावना दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता में स्थिति ये होती है, यानी कि वो सिर्फ अपने बोलने में, सिर्फ बात में ही व्यवहार जो है वो प्यार वाला करते हैं, बाकी नहीं। नेक्स्ट है उसके बाद, अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों से बता देती हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इस स्टैंजा में से बन सकते हैं, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में भी लिखने हैं। वन लाइनर या वन वर्ड आपके ये आंसर्स हो सकते हैं। When does the poet think he lost his childhood? हम बात कर रहे हैं कहाँ की, सेकंड वाले स्टेंजा की हम लोग बात कर रहे हैं। और सेकंड वाले स्टेंजा में यदि मैं आपको बात करूं कि किस चीज के बारे में बात की गई है, तो हाइपोक्रेसी के बारे में बात की गई है। हाइपोक्रेसी, अब हाइपोक्रेसी क्या होती है कि हाइपोक्रेसी जो है उसका मतलब होता है क्या, दिखावा करना, आडंबर करना, वास्तविकता में कुछ और होना और दिखाना किसी मतलब कुछ और। जैसे प्रिटेंट हम लोग बोलते हैं कि दिखावा करता है, मतलब मेरे पास कुछ चीज़ है भी नहीं लेकिन फिर भी मैं इस तरह से दिखावा करूं कि मैं तो बहुत बड़ी दानी हूं, या मैं बहुत ही बड़ी जो है, आप अपनी तरफ से जो है कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि आडंबर करना, दिखावा करना, यानी कि वास्तविकता से बिल्कुल विपरीत होना, प्रिटेंशन हम उसको बोल सकते हैं। तो इसी स्टेंजा में से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया वो सेकंड स्टेंजा में से दिया है, और मैंने क्वेश्चन क्या बोला है कि when does the poet think he lost his childhood? Second question, what do adults usually talk and preach of? Third question, how do adults differ in their actions? Next question, how did the poet feel about adults when he was a child? Next question, what has the poet found about adults? Next, what idea does the poet want to convey in these lines? कौन सी लाइनों की यहाँ पे बात हो रही है, तो मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं थर्ड स्टेंजा की। तो थर्ड स्टेंजा जो हमारा यहाँ पे है, क्वेश्चन यही जो पोएट का है, मार्कस नेटन का क्वेश्चन सेम बना रहता है कि when did my childhood go? Was it when I found my childhood was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that they were not those of other people, but my own and my alone.
was that the day? So, in this stanza, the poet does not know, in this poem also, the poet does not know when he lost his childhood. He says that it could perhaps be the time when he felt himself different from others. He realized his mind was really his own mind. In other words, he realized that his mind thought differently from others. He had an independent mind which he could use any way he liked. His thoughts were not the thoughts of other people, they were his own personal thoughts. A sense of ego had developed in him. He no longer thought himself as one among others. He thought himself to be a unique person. The poet says that it was perhaps in this ego that he lost his childhood. कि इस कविता में, इस पोयम में कवि को पता नहीं चलता है कि उसका बचपन जो है वो कब खो गया है। वह कहता है कि शायद यह तब हुआ होगा जब उसने ये महसूस कर लिया कि वो दूसरों से बिल्कुल अलग है। उसने महसूस किया कि उसका मन सचमुच अपना ही मन है। मीन्स क्या कि यहाँ पे पोएट ने महसूस किया कि उसका मन दूसरों से अलग सोचता है, उसकी जो सोच है वो दूसरों से अलग है, उसका एक खुद का अपना दिमाग है जिसे वह अपनी इच्छा से किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकता है। उसके विचार दूसरे लोगों के विचार नहीं हैं। वो जो चाहे वो सोच सकता है, उसके अपने खुद के अलग विचार हैं, उसमें अभिमान की भावना जो है वो विकसित, वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और वह खुद को दूसरों से एक अलग व्यक्ति मानने लग जाता है। और यही बात जो मार्क्स नेटन है, पोएट जो यहाँ पे है, तो पोएट यहीं पे यही चीज़ कहते हैं कि शायद जिस दिन उसके अंदर अपने आप को बेहतर, अपने आप को सबसे अलग समझने का अहंकार उसके अंदर आ गया था, शायद उसी दिन वो अपने बचपन को खो बैठा था। नेक्स्ट, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट फेस दैट ऑल आई नो। अब 3 जो स्टेंजा थे, उन 3 स्टेंजा में हमने बार बार से क्या पढ़ा? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो। लेकिन लास्ट स्टेंजा में जो पोएट है वो एजम्पशन लगा चुके हैं, लास्ट वाले स्टेंजा में उनका क्वेश्चन जो है वो बदल जाता है और वो कहते हैं क्या कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, और फिर खुद ही इस चीज़ का आंसर वो देते हैं। कैसे कि the poet does not know where his childhood has gone. He says that it has gone to some forgotten place. It could be hidden in some infant's face. That is the only thing he can say about it. The poet means to say the childhood remains only as long as one is an infant. As one grows in years, the innocence of childhood starts disappearing. मीन्स क्या कि अब जो पोएट हैं उनको पता नहीं है कि उनका बचपन जो है वो कहाँ चला गया है, और जो पोएट है वो कहते हैं कि यह शायद किसी ऐसी जगह पे चला गया है जहाँ पे इसको हमेशा हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा, या फिर जाकर वो किसी बच्चे के चेहरे के अंदर किसी इन्फेंट होता है जो बेबी होता है, जैसा दिख रहा है पिक्चर में आपको, तो इसी छोटे से बच्चे के चेहरे के अंदर शायद जाकर छिप गया है। और यही एकमात्र चीज़ है जो वह इसके बारे में कह सकता है। और कवि के कहने का मतलब ये है, यहाँ पे पोएट के कहने का अर्थ ये है कि बचपन केवल तब तक रहता है जब तक कि कोई व्यक्ति अपनी बचपन में, यानी कि छोटा बच्चा रहता है, इन्फेंट रहता है, सिर्फ तभी तक उसके अंदर बचपन रहता है। और जैसे जैसे वह उम्र में बड़ा होता जाता है वो बचपन की मासूमियत गायब होने लगती है। तो जो फर्स्ट स्टेंजा है, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेंजा है, तो फर्स्ट स्टेंजा में मैंने आपको बताया, बात की गई है किसके बारे में?
रेशनलिज्म के बारे में। अब रेशनलिज्म क्या है और क्यों रेशनलिज्म इसमें कहा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वो कहता है ये जो चीज़ें हैं ना, हेल एंड हेवन, ये सब क्या है, इमेजनरी चीज़ें हैं। तो जिस दिन उसके अंदर रेशनलिज्म, तर्क वितर्क की भावना आ गई थी कि बताओ हेल है तो कहाँ पे है, हेवन है तो कहाँ पे है, क्या वो पश्चिम बंगाल के पास में है, क्या अमेरिका के पास में है, जिस दिन उसमें तर्क वितर्क की भावना आ जाती है, मान लीजिए कि उस दिन आपका बचपन चला गया है। उसके बाद सेकंड स्टेंजा में मैंने आपको बताया क्या, हाइपोक्रेसी जो है वो यहाँ पे पोएट ने यूज की है, मार्कस नेटन ने। अब हाइपोक्रेसी क्या होता है, हाइपोक्रेसी जो है वो क्या होगा, हाइपोक्रेसी मीन्स होता है दिखावा करना, आडंबर करना। अब यहाँ पे सेकंड जो स्टेंजा है उसमें वो कहता है ना कि लोग जो बड़े अडल्ट लोग हैं वो दिखावा करते हैं कुछ और वास्तविकता में होते हैं कुछ और। तो जिस दिन पोएट को ये समझ में आ गया था ना, भाई ये जो बड़े लोग हैं ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं अच्छा होने का, वास्तविकता में अंदर से अच्छे नहीं है, तो जिस दिन ये चीज़ उसको समझ में आ गई थी, इसका मतलब उस दिन उसका बचपन चला गया था। उसके बाद थर्ड स्टेंजा में हम लोग अगर बात करें तो थर्ड स्टेंजा में यहाँ पे ये जो पोएट हैं ये बात करते हैं किसकी, इंडिविजुअलिटी की, किसकी, इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं। जिस दिन पोएट को ये समझ आ गया था कि भाई मेरे खुद के थॉट मेरे खुद के हैं, इनके ऊपर दूसरों का कोई अधिकार नहीं है, मैं अपने आप में इंडिविजुअल हूँ, उस दिन समझ लीजिए उसका बचपन चला गया था। ये सारे के सारे अजम्पशन लगाए किसने, पोएट ने, कि शायद उस दिन चला गया था, शायद उस दिन चला गया था, शायद उस दिन चला गया था। और लास्ट में वो अपना क्वेश्चन चेंज करते हैं और फोर्थ स्टेंजा में वो यहाँ पे बताते हैं कि उनका बचपन जो है वो कहाँ चला गया, और फिर वो कहते हैं क्या कि कहाँ चला गया, किसी इन्फेंट के फेस पर चला गया। नेक्स्ट, अब इसके दोनों के थर्ड और फोर्थ स्टेंजा के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग देख लेते हैं। सो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, थर्ड स्टेंजा में से जो क्वेश्चंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो थर्ड जो स्टेंजा हमारा रहेगा वो ये वाला रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट थिंक ही लॉस्ट हिज when does the poet think he lost his childhood? Second, what has the poet found about his mind? Next, how can he use his mind? Next, how does he say about his thoughts? Next, how does he differentiate himself from other people? Next, what ideas does the poet want to convey in these lines, means in third stanza? Next question from the fourth stanza, name the poem and the poet. Next, where does the poet think his childhood has gone? Next, explain the words some forgotten place that is used in the fourth stanza. Next question, where does the poet think childhood can be found? Next, what ideas does the poet want to convey in these lines? Next, तो सबसे पहले हम लोग इस पोएम की राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। राइमिंग स्कीम जो रहेगी पोएम की वो ABBCCD। नेक्स्ट है उसके बाद जो फिगर ऑफ स्पीच यानी कि लिटरेरी डिवाइस, अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं इस पोएम में, तो यहाँ पे रिपीटेशन है, बार बार से पोएट ने कहा है क्या कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वाज दैट द डे। उसके बाद है एंथिसिस। एंथिसिस में क्या होता है, ये आपको दिया भी गया है कि जो दो कंट्रास्टिंग इफेक्ट वाले जो वर्ड हैं, कल भी मैंने आपको बताया था कि एंथिसिस में क्या होता है कि दो कंट्रास्टिंग वर्ड होते हैं, अपोजिट वर्ड होते हैं, जैसे हेल और हेवन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, एंथिसिस होगा।
नेक्स्ट उसके बाद एलिट्रेशन सबसे इजी है, ये तो आपको पता ही है। एम जब बार बार से जो लेटर्स हैं, कॉन्सोनेंट जो साउंड है यदि वो बार बार से रिपीट हो रही है तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बनता है कौन सा, एलिट्रेशन। नेक्स्ट है उसके बाद इन्वर्शन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ इन्वर्शन होता क्या है, तो इन्वर्शन क्या है कि नॉर्मल वर्ड ऑर्डर स्ट्रक्चर की बजाय क्या हो, चेंज हो जाए, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब आती है लेकिन क्या हो जाए, वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, इन्वर्शन बन जाएगा। ऐसे ही नाउन और एडजेक्टिव और नाउन होता है लेकिन पहले एडजेक्टिव आ जाए उसके बाद नाउन आ जाए तो इस तरह से भी वो इन्वर्शन होगा। उसके बाद हम लोग इस पोएम की थीम देख लेते हैं। The poem Childhood focuses on the theme of loss of innocence in this poem. The poet Marcus Nathan wonders when and where he lost his childhood. In this quest to find the moment he grew up, Marcus highlights the innocence and faith he lost even as he gained traditional individuality. Adolescence is usually a confusing time for a child who is unable to immediately come to terms with the physical, hormonal, and psychological change in his or her personality. He becomes a young adult. He neither wants to call himself a child nor is he completely an adult. Now he finally finds his answer that he lost his childhood to some forgotten place and that his childhood has become a memory. So आज के लिए इतना ही. Have a nice day.